جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ کی ویڈیوز میں آپ نے ماہ رمضان المبارکہ کے فضائل سنے، روزے کے فضائل سنے، روزے داروں کے فضائل سنے، اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا، اور روزہ کیسے رہنا ہے، مکمل روحانی روزہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے دیکھا اور سماعت فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں افطار کے وقت جو مسلمان غلطیاں کرتا ہے یا جن چیزوں کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، چند چیزیں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ افطار کا آغاز کھجور سے کرنا سنت رسول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور ہوتا تو اس سے افطار کا آغاز فرماتے، کھجور نہ ہوتا تو چھوہارے سے آپ افطار فرماتے، یا یہ بھی نہ ہوتا تو آپ پانی سے افطار کرتے، تو یہ سنت رسول ہے۔ کھجور سے افطار کرنا سنت رسول، چھوہارے سے افطار کرنا سنت رسول، اور پانی سے افطار کرنا سنت رسول ہے۔ آپ کھجور سے شروعات کریں، اس کے بعد جو بھی غذا، جو بھی نعمت آپ کو میسر ہے وہ کھائے، اس کے بعد آپ پانی پیے افطار کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، تو کھجور سے افطار کرنا سنت رسول ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دن تمام میں محنت سے روزہ رہتے ہیں، بھوک کی شدت برداشت کرتے ہیں، پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں، ہر گناہ سے بچتے ہیں اور اپنے روزے کو بچاتے ہیں، تو علماء ارشاد فرماتے ہیں اپنے حلال روزے کو حلال چیز سے افطار کیا کرو، حلال چیز سے ختم کیا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حرام کمائی سے کوئی چیز خرید کر اس سے افطار مت کرو، حلال روزے کو حرام افطار سے اپنے خراب مت کرو، برباد مت کرو۔ رشوت کی کمائی ہے، دھوکہ دہی کی کمائی ہے، لپا ٹپی کی کمائی ہے، لہذا اس کمائی سے، سود کی کمائی ہے، اس کمائی سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے افطاری مت خریدو، اس سے افطار مت کرو۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں لہذا روزہ حلال ہے، اسے حلال چیز سے افطار کیا کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اور ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے، آج کل اس مسئلے سے تقریباً لوگ ناواقف ہیں۔ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کسی مسئلے سے ناواقف ہوتے ہیں، لیکن انہیں جب اصلی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو لوگ شکایت کرتے ہیں، ارے یہ کیا ہے، ہم تو آج تک نہیں سنے، آج نئی چیز سن رہے ہیں۔ آپ کو معلومات نہیں ہے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، افطار کا مسئلہ یہ ہے کہ عموماً لوگ افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھتے ہیں۔ کئی مساجد میں تو باضابطہ پہلے سائرن سے پہلے افطار کی دعا پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد افطار کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ابو داؤد شریف کی بھی حدیث ہے کہ افطار کی دعا افطار کے بعد پڑھنا ہے۔ فتاوی رضویہ ہے، فتاوی عالمگیری ہے، بہار شریعت ہے، قانون شریعت ہے، ان کتابوں میں بھی یہی ہے لکھا ہوا کہ افطار کی دعا افطار کے بعد پڑھنی ہے۔ افطار کی دعا کا جو ترجمہ ہے اس کو دیکھیں گے تو بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ کیا کا مطلب کیا؟ افطار کرنے کے بعد کی بات ہے۔ اگر افطار کر رہا ہوں تو پہلے کی بات ہوگی، لیکن تیرے دیے ہوئے رزق میں نے افطار کیا تو یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنے کی دعا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، خیال رکھیں کہ افطار کی دعا ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ افطار کا آغاز کریں، اس کے بعد یہ افطار کی دعا آپ پڑھ لیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی جیسی حیثیت ہے وہ افطاری کا انتظام کرے اپنی حیثیت کے مطابق۔ افطاری میں زیادہ جمع کرنے کی کوشش نہ کرے، یا اگر کم ہو تو اس میں غصہ نہ ہو، آپ غصے میں آپے سے باہر نہ ہو، نہ اونٹن اور کڑن کا مظاہرہ کریں، اتنی ہی افطاری ہے، اتنی افطاری سے کیا ہوگا؟
लिहाजा ये ना करें। अल्लाह ने जो आपको दिया है उस पर शुक्र अदा करें। अल्लाह ने आपको जितना भी दिया है तो उस पर शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मजीद नेमतों से आपको सरफराज फरमाएगा। आप देखें, आपके पास तो कुछ नेमतें हैं इफ्तारी करने के लिए, लेकिन आज दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको न खाने को है, न पीने को है, न पहनने को है, न रहने को मकान है, न खाने के लिए ग़िज़ा है, न जिस्म पर पहनने के लिए कपड़ा है। कई गरीब लोग ऐसे भी हैं। इसीलिए उलमा इरशाद फरमाते हैं, दुनियादारी में देखना है तो अपने से गरीब लोगों को, कमतर लोगों को देखो, और दीनदारी में देखना है तो अपने से अफजल और बड़े लोगों को देखो। लिहाजा कई लोग ऐसे हैं जिनको ना शहर का इंतजाम है, ना इफ्तारी का इंतजाम है। आजकल तो ये मामला रोज़े रोशन की तरह वाक़िफ़ है। हर मुसलमान जानता है कि आजकल फ़लस्तीन के मुसलमानों पे क्या गुजर रही है, गज़ा के मुसलमानों पे क्या गुजर रही है। न उनको इफ्तार का इंतजाम उनके पास है, न शहर का इंतजाम उनके पास है। ऊपर से बमबारी हो रही है, शहीद हो रहे हैं, मर्द शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। उस पर रमज़ानुल मुबारक में भूखे प्यासे हैं और इफ्तारी के लिए कुछ लेने भी ठहरे हैं, ऊपर से बमबारी हो रही, इतना जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। आज खाने पीने को इतना कहत पड़ गया है, वहाँ पर गज़ा में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोग घास फूस खा रहे हैं। अंदाजा लगाओ, अल्लाह ने हमें तो कुछ खाने पीने के लिए दिया है, शुक्र अदा करो, लाख लाख शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें नेमत दी, लेकिन वो फ़लस्तीन के गज़ा के मुसलमान घास फूस खा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी एक तस्वीर आई, फ़लस्तीन के गज़ा के लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने इफ्तार के वक्त कटोरे रखे हुए हैं, और कटोरों में क्या है, अनवा अक़साम की नेमतें नहीं है, घास से बनाया हुआ सूप है जो सूप रखा हुआ है। हर एक के सामने कटोरा है, उसमें घास से बनाया हुआ सूप है, उसी सूप से इफ्तारी कर रहे हैं। आज हमारे पास खजूर भी है, तरबूज भी है, अनानास भी है, जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करें। मुख्तसर ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, उन लोगों की हालत को मद्देनजर रखो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी में हदीस पाक बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा और उस पर कुछ सबक आमूज बातें हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं फरमाता, यानी हमेशा कबूल फरमाता है। पहले आदिल बादशाह, इंसाफ करने वाला बादशाह, और दूसरा मजलूम की दुआ है, जिस पर जुल्म किया जाता है वो दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है, रद्द नहीं। और तीसरे इफ्तार के वक्त की दुआ अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाता है। ये तो ऐसे तो दुआओं का महीना है, तहज्जुद में दुआ कबूल होती है, लेकिन बिलखुसूस अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इफ्तार के वक्त जो दुआ मांगी जाती है जरूर बस जरूर कबूल होती है। खाली दिनों में अपनी मर्जी से हम दुआ मांगते हैं, लेकिन रब तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, इफ्तार के वक्त इस महीने में दुआ मांगो, तुम जो दुआ मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। दुनिया की दौलत मांगो, दुनिया देगा, आखिरत की दौलत मांगो, आखिरत की दौलत देगा, अपने गुनाहों से माफी चाहो, गुनाहों से माफी देगा, जहन्नुम से पनाह मांगो, जहन्नुम से पनाह देगा, जन्नत की तलब करो, अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा, बीमारी से शिफा मांगो, अल्लाह शिफा देगा, जो मांगोगे देगा अल्लाह तबारक व तआला देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे पास मांगने के लिए वक्त नहीं है, मांगने में हम शर्म महसूस करते हैं, कितनी बड़ी शर्म की बात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे बंदे मांग, जो दे मांगना है मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बंदा है, उमूमन देखा जाता है इफ्तार की दुआ की कबूलियत ऐसी है, इफ्तार की दुआ कबूल होती है, लेकिन आजकल मामला क्या है, हमारा और आपका मुशाहिदा है। आजकल क्या होता है, मर्द हजरात इतनी इफ्तारी खरीदने में मसरूफ होते हैं कि साय रन का वक्त हो जाता है, उन्हें इफ्तारी के वक्त की दुआ की तौफीक नहीं होती, दुआ मांगने का वक्त नहीं है। और ख़वातीन इस्लाम का मामला अलग है। आज ख़वातीन इस्लाम ज़ोहर से लेकर असर तक मुख्तलिफ इबादतों में मसरूफ़ होती, इबादत करें, लेकिन पकवान का एक वक्त फिक्स कर लें। लेकिन पकवान के लिए हमारी ख़वातीन कब जाती हैं, असर के बाद ख़वातीन बावर्ची खाने में जाती हैं और नए नए डिशें बनाने की कोशिश करती हैं। रमज़ान तो नेकियों का सीज़न था, इबादतों का सीज़न था, लेकिन आज हम मुसलमान मर्द और औरतों ने इसे खाने पीने का सीज़न बना दिया है। ख़वातीन इस्लाम घर में नई नई डिशें बनाते हैं और मर्द हजरात बाहर कोई हरीस खा रहा है, कोई हलीम खा रहा है, लिहाजा खाने पीने का सीजन बना दिए। रमजान तो तकवा परहेजगारी के लिए आया है, इबादत गुजारी के लिए आया है, नेकियां कमाने के लिए आया है, लेकिन आज माँ बहन हमारी घर में होती हैं,
भाई की ये पसंद है, बहन की ये पसंद है, बाप की ये पसंद है, बेटे की ये पसंद है, शौहर की ये पसंद है, सबकी पसंद की डिश बनाती रहती है, सायरन हो जाता है, दुआ की तौफीक नहीं होती। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है, इससे बड़ी बदबख्ती की बात क्या है। अल्लाह देने के लिए तैयार है, हम रोना रोते हैं, अल्लाह हमें नहीं देख रहा है, अल्लाह ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, ये ऐसे परेशान है, वैसे परेशान है। सारी परेशानियों का इलाज अल्लाह देने के लिए तैयार है, लेकिन दुआ मांगने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुख्तसर कहना यही है, इफ्तार के वक्त की दुआ का जरूर बजरूर एहतमाम करें, अल्लाह देने के लिए तैयार है। और अगर हम नहीं मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। लिहाजा इफ्तार की इंतजाम करें, इफ्तार जो मैसर है उससे इफ्तार करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इफ्तार की दुआ का एहतमाम करें। ख़वातीन इस्लाम भी जो बनाना है बना लें, लेकिन कम से कम इफ्तार से सायरन से 10-15 मिनट पहले दुनिया से कट जाएं, पूरा लो अल्लाह से लगाएं, पूरी तवज्जो से, खुशू खुजू से, दिल की गहराइयों से, रो रो के, गिड़गिड़ा के, तड़प तड़प के जो मांगना है मांगे, अपने लिए मांगे, घर वालों के लिए मांगे, मोहल्ले वालों के लिए मांगे, मुसलमानों के लिए मांगे, दुनिया के लिए मांगे, आखिरत के लिए मांगे, जो मांगना है मांगे। मेरा मौला अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने हबीब के नारे ने पाक के सदक़े में, रमज़ानुल मुबारक के सदक़े तुफ़े में आप जो मांगेंगे अता फरमाएगा। लिहाजा कोशिश ये करें, इफ्तार के वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहानों में कामयाबी कामरानी से सरफराज फरमाएगा। आप तमाम हजरात से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें। मेरे वीडियोस से अगर आपके इल्म दीन में इजाफा हो रहा है तो इसे सदक़े जारिया के तौर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला की दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और इफ्तार के वक्त हर मुसलमान को दुआ का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी और आपकी जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह तबारक व तआला पूरा फरमाए। जितने मुसलमान परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जितने मुसलमान बीमार हाल हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। मुझे और आप तमाम को ज़मीन आसमान की हर बला से, हर छोटे बड़े मर्द से महफूज फरमाए और जितने मुसलमान जेलों में बेकैद हैं, बेकसूर के कैद हैं, अल्लाह ताला बाइज़्ज़त रिहाई के सामान मुहैया फरमाए और गज़ा में जितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं उन तमाम शहदा के अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए और ज़िंदगी में एक मरतबे अल्लाह तबारक व तआला हमें माह रमज़ानुल मुबारक मदीने मुनव्वरा में गुजारने की तौफीक अता फरमाए और जब भी मौत अता फरमाए हमें माह रमज़ानुल मुबारक में मदीने मुनव्वरा में और जुम्मा के दिन मौत नसीब फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।